Good morning, students. How are you? I hope you all are fine as well. And today we are going to start our English literature book. Okay, students. And English literature we are going on the lesson to never be disobedient. Okay. In our previous video, I have gave you an explanation of lesson 2. I hope that you all will listen very carefully and you all understood the story of lesson 2, never be disobedient, I think. Okay, students. And today we are going to fill our exercise. So get ready with pencil, eraser, sharpener and open the page number 12. Okay, students. Open the page number 12. Today you have to fill only book, not in copy. You have to fill only book, all the exercise of lesson 2. And after that, in our next video, how could you write lesson 2 in your copy, I will tell you. Okay. So take your pencil, get ready with our first questions. Okay. The first question is MCQs. Your first exercise in lesson 2 is MCQs, multiple choice questions. Okay, students. The first question is the whole family was quiet. जो डो की फैमिली थी वो क्या थी? Quiet, unusual, abnormal or normal? So the right answer is unusual. You have to fill in your book. Okay, you have to fill here unusual. Next is he saw a big blob of resin dash from a crack. क्या होगा? Emerging. You have to fill here emerging. He lost his balance and went dash down the side of a steep hill. उसने अपना बैलेंस खो दिया और क्या करते हुए पहाड़ों के नीचे चला गया? स्लाइडिंग, फॉलिंग या रोलिंग? क्या होगा? रोलिंग. रोलिंग पे टिक कीजिए और यहाँ पे फिल करिए रोलिंग. क्या फिल करेंगे? रोलिंग. ROLLING, रोलिंग. The next is there was a big dash on the way. रास्ते में बहुत बड़ा क्या था? meadow. MEADOW. And thus the whole of the Doe family, लास्ट में क्या होता है? डो की फैमिली सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है. यहाँ पे प्राइज्ड, PERISHED. You have to fill here, tick here and fill it. Okay, this is completed. Now come on with next page. Our next exercise is question answer. Okay, students, the answers will be given in your images. By images I will give you the all answers. Okay, come on next exercise. See, fill in the blanks choosing the correct words from the lesson. lesson से आपको correct words choose करने हैं और fill करना है. So first one is they were not dash beings. यहाँ पे होगा human beings. ये sentence आपको lesson में मिलेंगे. The next is he went to the end of a small branch and enjoyed a dash for some time. मिस्टर एंड जो रहते हैं वो ब्रांच के एक छोटे से ब्रांच पे एंड पर जाते हैं और क्या करने लगते हैं? स्विंग. क्या करने लगते हैं? स्विंग, झूला झूलने लगते हैं. As soon as he tried to do so, he got dash in it. जैसे ही वो सोचते हैं वहाँ से कूदने की, भागने की, क्या होता है? स्टक, चिपक जाते हैं. She decided to take a dash across it. मिसेस कॉटन क्या सोचती हैं? शॉर्टकट लेने को. क्या सोचती हैं? शॉर्टकट. मदर बटर वेटेड डैश फॉर हर फैमिली टू रिटर्न. मदर बटर जो रहती हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती रहती हैं अपनी फैमिली का. यहाँ क्या होगा? एनॉक्सली. वाई. Okay,
The next is take the true sentence and cross the false one. As you all know, we have to put a tick on a right statement and cross on the false one, false statement. Okay, the first is the Doe family was like any other ordinary family. जो डो फैमिली थी बाकी सब फैमिलीज की तरह अच्छी फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली थी, यूनिक थी? नो, दे वेयर नॉट ह्यूमन बींग्स, वे ह्यूमन बींग्स नहीं थे. ऑल द मेम्बर्स ऑफ द डो फैमिली वेयर वेरी ओबीडियंट. डो फैमिली के सारे मेंबर्स जो थे वो बहुत ही आज्ञाकारी थे? नो, फॉल्स, दे वेयर डिसओबीडियंट. फादर डो वॉक डाउन द एज ऑफ द रोड. फादर डो जो थे वो रोड के एकदम एज पे वॉक कर रहे थे? यस. मिस कॉटन डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट थ्रू द मेडो. मिस कॉटन जो थी वो मेडो से शॉर्टकट लेना चाह रही थी? यस. मदर बटर मेल्टेड इन द हॉट सन एंड बिकेम अ पूल ऑफ बटर. मदर बटर जो है हॉट सन में जाते ही पूल ऑफ बटर बन जाती हैं, एकदम लिक्विड हो जाती हैं ना? यस. The next is who said the following and to whom. Okay students, who said the following and to whom. यहाँ स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे सेड बाय और सेड टू का कॉलम दिया है. यहाँ पे आपको लिखना है सेड बाय मीन्स किसने कहा था, सेड टू मीन्स किससे कहा था. ओके, द फर्स्ट इज गो एंड गेट सम रेजिन फ्रॉम द नीम ट्री. किसने कहा था जाओ और नीम की ट्री से कुछ छाल लेके आओ? मदर बटर ने कहा था. किसने? मदर बटर. और किससे कहा था? किससे कहा था? मिस्टर एंट से कहा था. मिस्टर एंट से. यू कुड ईजली स्लिप एंड रोल डाउन द साइड. किसने बोला था कि अगर आप एज से जाओगे तो आसानी से स्लिप कर जाओगे, रोल डाउन, रोलिंग करते हुए? मदर बटर ने कहा था. और किससे कहा था? किससे कहा था मदर बटर ने? मिस्टर डो से. मिस्टर डो से. इट इज़ बेटर टू गो अलॉन्ग द एज. किसने कहा था कि मैं साइड से बीच से ना जाके मैं साइड से जाऊंगा, एज से जाऊंगा? किसने कहा था? मिस्टर डो ने कहा था कि मैं सड़क के किनारे से जाना पसंद करूंगा जहाँ से मैं जल्दी पहुंचूंगा और मुझे कोई भी व्हीकल्स भी हार्म नहीं करेंगी. किससे कहा था? हिमसेल्फ, खुद से कहा था उन्होंने. ये बात उन्होंने खुद से कही थी. सो जब आप कोई बात खुद से बोलते हैं तो वहाँ यूज़ करेंगे हिमसेल्फ. बी केयरफुल माई चाइल्ड, नेवर वॉक इन ओपन स्पेसेस. किसने कहा था कि बी केयरफुल, सतर्क रहना मेरी बच्ची, खुले जगह में मत वॉक करना? मदर बटर ने कहा था ये बात. और किससे कहा था मदर बटर ने? किससे? मिस कॉटन से कहा था. किससे? मिस कॉटन से. द नेक्स्ट इज यू आर ऑलवेज स्कैर्ड फॉर नथिंग. ये बात किसने कहा था? तुम हमेशा डरती हो और होता कुछ भी नहीं है. मिस कॉटन ने कहा था कि हर बात से आप डरती हैं. मिस कॉटन ने. किससे कहा था? मदर बटर से कहा था. Students, you have to fill exercise C, D and E in your book. Then come on your next page. Here is our next page, and in our next page is name two plants or trees from where we get. दो प्लांट्स या ट्रीज़ के नेम लिखने हैं जिन चीज़ों से हमें ये मिलता है. टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर जो मिलते हैं. मेडिसिन्स जिससे मिलते हैं, फाइबर जिससे मिलता है. इस तरह से आपको दो दो प्लांट्स के नेम लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक मैं आपको बताती हूँ. टिम्बर जो है हमें वो
एक होता है साल का पेड़, उससे मिलता है, और एक होता है टीक, TEAK, टीक। मेडिसिन जो है सबसे इजी, हमें नीम से भी मिलता है और तुलसी, ये जो पेड़ हैं इनसे हम मेडिसिन बनाने में हेल्प पाते हैं। फाइबर सबसे फर्स्ट इज कॉटन, आप EVS में पढ़े भी होंगे, एंड जूट प्लांट जो होता है। फिर है बेवरेज, पेय पदार्थ लाइक टी, चाय पत्ती जो है हमें टी प्लांट से मिलती है। कॉफ़ी जो है कॉफ़ी प्लांट के सीड्स होते हैं, उनका पाउडर बनाने के बाद मिलता है। स्पाइसेस मसाले, तो एक तो क्लोव लिख लीजिए आप, क्लोव्स हो गए, एंड सेकेंड इज सिनेमन, दालचीनी। ओके, द नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन टू मैच द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे आपको मैच करने हैं अपोजिट्स को, मैं एक बता देती हूँ, लाइक ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, इसी तरह से आपको मैच करना है इसको, ये आपको खुद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन कलर। ये जो कलर्स में पिंक कलर्स के वर्ड्स दिए हैं, लाइक हॉट, ऑलवेज, स्टे, फॉरगेट, ओबीडियंट, इनके आपको क्या लिखने हैं, अपोजिट्स यहाँ पे फिल करने हैं। लाइक हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड। नेवर का, सॉरी ऑलवेज का नेवर, स्टे का लीव, फॉरगेट्स का रिमेंबर, ओबीडियंट का डिसओबीडियंट, यहाँ आपको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मीन्स जहाँ पे आप नॉट लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, जहाँ पे सुटेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक इट मीन्स students, now the change the following sentences into negative. My mother goes to the temple every morning. यहाँ पे बात हो रही है my mother goes to the temple every morning। यहाँ पे आपको नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, तो goes के जगह आप यूज़ करेंगे my mother does not go to the temple every morning. My mother does not go to the temple every morning। इसी तरह आपको ये सारे करने हैं। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए अपने आप से करने की, अदरवाइज़ आपसे नहीं फिल होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मैसेज करिएगा, मैं एक्सप्लेन और डीपली कर दूँगी आपको। ओके, द नेक्स्ट इज look at the following picture and write below each whether it is good thing or bad। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गुड और बैड लिखना है इन फिगर्स के नीचे। अगर ये गुड थिंग है तो गुड, अगर बैड है तो बैड। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस फिगर इज शोइंग दैट इट इज़ अ बैड हैबिट, इट इज़ अ बैड हैबिट। यू हैव टू ऑलवेज पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन। आपको हमेशा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे आपको डस्टबिन में ही उसे थ्रो करना चाहिए। सो दिस इज़ अ बैड, यहाँ पे आप बैड लिखेंगे। लाइक यू हैव टू डू दिस ऑल द थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट इट। थैंक यू।